नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकारियों को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी है। यानी कि अब मैजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी अभियान जारी रख सकता है। गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन से हथियार गिराए जाने की घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हालांकि सुरक्षा पर सियासत भी हो रही है, जो देश के लिए बहुत ही गहरा चिंता का विषय है। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि आखिरकार सुरक्षा पर सवाल क्यों। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ उत्पल वोरा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। थैंक यू जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी उत्पल जी। वैसे तो बात बीएसएफ की है, लेकिन बीएसएफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है और एक बयान भी जारी किया गया था कि इससे बीएसएफ को सीमा पार से होने वाले जो अपराध है उसको रोक लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब ये विस्तार बढ़ा दिया गया है। जल्पा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर ड्रोन वगैरह की बात की हुई है उसका भी हम विस्तृत जानकारी देंगे। बट लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर। एज ऑफ टुडे दिस पर्टिकुलर लॉ और दिस पर्टिकुलर बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस of the highest decision making body in the country, and therefore it has become a law of the land. Now, whether I like it, you do not like it, some party does not like it, or some group of individuals, they do not like it, it is of no relevance whatsoever. Because either we have to repeal this law or we have to abide by this law. Therefore, we can only discuss now, and we can discuss the nuance as well as the implication and ramification, or how this is going to be received by the various law enforcement agencies, security agencies, intelligence agencies, and how it will pinch upon the common, federalism or a federalist structure between the state and the central government. We can only discuss that. But otherwise, we have to tell very clearly to our viewers that this particular, thing has become a law of the land, and therefore it shall be implemented by the BSF as well as, the various agencies. Now let us come to the real fact. See, there are two issues about it. There is one thing known as an internal security and the other one is an external security. Now, external security generally, impinges upon the internal security also and vice versa. And therefore, they both are the subset of the national defense policy or a national security policy. And therefore, they have to go hand in hand, or they have to, have a right kind of a balance or a shake-up, between the, the shaking of hands between both of them. If one particular factor is, weak, the other will definitely have a telling effect on that. And we have to understand that factor. Therefore, to a large extent, in the kind of situation that we are now going into in the geopolitical, scenario, where Afghanistan, the drug issue, the drug menace, the induction of a drug through various routes of, the Afghan-Pakistan border, and including what we have seen in the recent past, that a massive quantity of 3,000 kilograms of drugs, worth almost about 21,000 crores, was, the effort was made to induct into the country. Therefore, we cannot take this issue little lightly. Similarly, drones have also been utilized to play around with the national security. And drones, of course, they have a speed, they have a predetermined, the route set into that. They are intelligent drones now, and they can, probably follow the command and control which has been given to them from across the border. Therefore, there is no doubt that a body like BSF, which, acts on an international boundary, there are three issues: international boundary, LOC, and the LAC. Now, whilst LOC and the LAC in the current scenario, they have been heavily fortified and is almost become impregnable. But IB, to a large extent, it is well drawn out, well accepted,
and therefore, BSF by and large mans the IB and, and controls the IB. Therefore, effort has been made even to, carry out induction of these drugs, narcotics, infiltration of men and material, and even the weapons also through the international boundary. Therefore, what we are right now talking, it has got a large ramification. It is not only restricted to the IB of Gujarat and the Rajasthan, but now it is also the union territories of J&K and also the northeastern states like the Manipur and Assam. Time is also with the Punjab and the West Bengal. Now, once a law of this nature comes into force, Jalpa, there is bound to be a little bit of connotation, and certain there has to be one group of people, and one group of people will be against, saying that our the rights have been curtailed. A problem, and also the BSF kind of powers that have been given 15 kilometers, it has been increased to 50 kilometers. And in Gujarat, which was 80 kilometers, it has been reduced to 50 kilometers because to bring in the uniformity between the other parts of. So to a large extent, I would say, or a strategic analyst, that the country needs this kind of mechanism. And therefore, I think a time comes where we have to see, quite well above the a small terra firma or a small prism of the political prism. We have to be nationalist, and we have to allow this government to function and carry out tackling of the menace which is there knocking at our door. And therefore, we don't have to see from that angle whether it's my state or my requirement or my federalism. No, it doesn't happen that way. Or at the base, what it can be done is that a joint co-working group can be formed between various the security and intelligence agencies, and maybe a steering mechanism can be worked out between the state bodies and a central bodies. But there is no doubt that in the revised threat scenario, in the revised threat perception, and the revised neutralizing mechanism that we are looking at it from this from the country's point of view, I think this is not a bad idea that we have increased the the working spheres and given this kind of powers to the BSF, because BSF with the revised threat mechanism definitely needs a little more leverage as well as the leeway in enforcing their body and carrying out certain kind of interrogation, arrest, the seizure of man, material, narcotics, drugs, weapons, and the drones and drones operating mechanism. So in my mind, I don't think it will be a wrong idea or a wrong a bill that has been brought into the place. We should not be very hasty in coming to that kind of conclusion. Let the new mechanism be played out and see how it functions. And we can always have amendments, or we can have a probably some kind of the midway course correction if required. But it will definitely require a larger cohesive mechanism, people working together, agencies working together for a common cause, and that common cause should be the national security. And if that works out, I think there is nothing wrong in that. But if there are some fissures are found, and if we feel that yes, this is not working out, and I can understand why states are creating this kind of a problem, because when you increase the 50-kilometer belt, particularly in a state like Punjab or West Bengal or Assam, or even in the northeastern region, the entire districts will come into the jurisprudence of BSF, and it will go away from the jurisprudence of the local police and the state, the SDM mechanism, which was otherwise into the place. So obviously, it is going to pinch somewhere, but it is also going to get benefited by in a certain manner. So therefore, we'll have to wait and watch. If the states are saying that the entire districts and all put together, if they are going to the control of that is going to shift into the hands of BSF, it is a cause for concern. But it is not as if we cannot find a via media and we cannot work out this kind of
the differences which are there between the state bodies and a central bodies. We will have to work out. But overall, I would say it should be a welcome step as far as the national security is concerned. And I think if fissures are found at a later stage, we can find a via media into that. But as we go further detail into the discussion, maybe we can have a more deeper discussion on this issue. जी जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि बीएसएफ को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में तस्करों और उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में इससे मदद मिलेगी, लेकिन प्रश्न होता है कि इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री है वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बंगाल की, अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की भी, तो भी इसका विरोध किया जा रहा है। तभी ये प्रश्न होता है कि सुरक्षा पर सवाल क्यों? जी शैलेश जी, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं अभिनंदन दूंगा आपकी चैनल को, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो दायरा बढ़ाने की बात है वो आज से नहीं है। सेक्शन 93 के तहत, सेक्शन 139 के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है, उसमें जो 1968 से ये चला रहा है। तो तब भी 15 किलोमीटर का जो दायरा था वो 50 किमी का दायरा कर दिया है। तो इसमें जो बॉर्डर में आते, जो बांग्लादेश और पंजाब की बॉर्डर है, उसके जो गांव हैं उसको भी प्रॉब्लम होता था। और ये 2.25 लाख यानी कि 2.65 लाख जवान हमारे सुरक्षा कर्मी जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा पर 6,300 से ज्यादा भारतीय मोर्चे पर ये काम कर रहे हैं। और ये जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल उसकी बॉर्डर लगती है, तो वहां भी कहीं ना कहीं जो भारत विरोधी दल है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ कर जाते हैं। और अब तो हमने देखा है कि जो देश की सिक्योरिटी है उसको राष्ट्र हित माना जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी करना वो हमारी प्रायोरिटी है। जब से नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह अब हमारे होम मिनिस्टर बने हैं, तब से सीमा पे जो सुरक्षा बढ़ी है और घुसपैठ कम हुई है, वो भी हम देख रहे हैं। इसके तहत जो पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये दोनों विरोध क्यों कर रहे हैं? पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी का शासन है और पश्चिम बंगाल में हमारी बहन ममता बनर्जी है, मगर जो सुरक्षा की बात आती है तब सभी को साथ में मिलकर सभी बातों में विरोध करना ये तो अच्छी बात नहीं है। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो उसके फैमिली मेंबर को, परिवार को छोड़ के हमारी सुरक्षा करते हैं, तो उसको 15 से 50 तक कर दिया है तो क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अब ड्रोन का जमाना आ गया है। पाकिस्तान से घुसपैठ होती है तो ड्रोन के माध्यम से होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ये 50 किलोमीटर का दायरा किया है। मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और ये जो अमित शाह ने अभी हमारे देश के सुरक्षा के लिए अच्छा कदम उठाया है, इसका भी जो सीमाओं से 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम, ये चारों राज्यों पे ये सब ये जो नियम लागू होगा। और 1968 से ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है वो चला आ रहा है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम ये संयुक्त करके ये जो एक्ट लगाया है ये भी हम जानते हैं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि 50 किलोमीटर तक कोई भी कार्यवाही करेगी ये जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो उसको 50 किलोमीटर के दायरे में कार्यवाही करने के अधिकार मिले हैं। तो इससे ये उसको जो पहले प्रॉब्लम होता था, ये प्रॉब्लम से वो बाहर निकलेंगे और हमारी सुरक्षा अच्छी तरह करेंगे। अब तो ये जो अफगानिस्तान वाली जो घटना घटित हुई है जलपा जी, तब से हमें पता है कि घुसपैठ बढ़ेगी और आतंकवादी और क्राइम बढ़ेगा। और मैं ये भी इंटरनेशनल जो ये क्राइम बढ़ता है तो ये जो हमारे आतंकवादी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान
भाई थी, पाकिस्तान जो भाई आ सकते हैं और बांग्लादेश से भी आ सकते हैं, इसीलिए ये सब किया जाता है। और जो भी करना है, जो सरकार हमारी जो गवर्नमेंट करती है, वो हमारे यहाँ रहने वाले, अभी मैं उत्पल जी को सुन रहा था, उन्होंने भी बोला है कि ये मैं उसको वेलकम करता हूँ, ये जो एक आया है उसका स्वागत करता हूँ, मगर मैं भी ये एक का स्वागत करता हूँ, इसीलिए कि आखिर तो ये देश की जनता को सुरक्षा देने की ही बात है, सुरक्षा में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने भी, हमारे वड़ा प्रधान श्री ने भी बोला है, सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं होगी। और ये सुरक्षा की बात है, सभी में विरोध करना, इलेक्शन में विरोध करना, ये सभी किसानों की कुछ बात हो तो उसमें विरोध करना, उद्योग की कुछ बात हो तो उसमें विरोध करना, गुजराती उद्योग जगत के जाने माने लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं तो उसका विरोध करना, ये नरेंद्र भाई का विरोध करने के लिए, नरेंद्र भाई को अनबन बोलने के लिए ये जो मायावती, जो ममता बनर्जी है और ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हैं और सोचते ही रहते हैं कि कैसे नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को घेरा जाए, मगर घेरना भी चाहिए। और हमारी कहीं गलती है, हम कोई कुछ गलती करते हैं तो उसका अधिकार भी है, और विपक्ष का अधिकार भी, विपक्ष का नहीं, सभी लोगों को जिसने वोट दिया है और वोट किया है, सरकार लाई है जिसने, वो सभी का अधिकार है। मगर ये सुरक्षा की बात हो, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो, तो इसमें ये जो बात चली है पंजाब वाली और पश्चिम बंगाल वाली, ये अच्छी बात नहीं है। सभी तरह जो घुसपैठ कौन करते हैं वो भी मालूम है, और ये जो पश्चिम बंगाल है वहाँ मेजोरिटी कौन है वो भी हमें पता है। ये मेजोरिटी होने के बावजूद वो लोग घुसपैठ करते हैं। जब सीए की बात आई तब भी ये जो ममता दीदी थी वो विरोध कर रही थी, और जो जीएसटी की बात आई तब भी विरोध कर रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का भी विरोध किया है कि कैसे एयर स्ट्राइक किया हमें बताओ। मगर सभी बातों में विरोध करना अच्छी बात नहीं है। उसके जो कांग्रेस और विपक्ष के दल है, उसके जो शरीर है उसमें नेगेटिविटी का फैलाव हो गया है, यही मैं मानता हूँ। आना चाहूंगी, अगर यहाँ पर बात करते हैं कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम देख भी रहे हैं, अगर कुछ चंद दिनों की बात करें तो जिस तरीके की घटना हो रही है, अगर हम दिल्ली की घटना अभी की याद करें कि जहां से एक स्लीपर सेल जो था वो पकड़ा गया था, और उसके अलावा कश्मीर में जो आम लोगों पर अभी उनकी हत्याएं भी की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में एक फैसला लिया गया जिस पे अब सियासत हो रही है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। बेशक जल्पा, क्योंकि अभी ये जो निर्णय लिया गया है वो फिलहाल की अभी जो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी ज्योति जी। तो अभी जो फैसला लिया गया है ये, तो वो हाल फिलहाल की घटनाओं के मद्देनजर रखते ही लिया गया है। अब मैं पहले यहाँ से शुरू करती हूँ कि बीएसएफ का कार्य क्षेत्र क्या है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो जो अपनी सीमा है भारत की, तो जो जमीन से जमीन मिली हुई है वो सारा अधिकार क्षेत्र में आता है। बॉर्डर सिक्योरिटी जो जमीन से जमीन जो दूसरे देशों से जुड़ी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी जो ये नियम लागू किया गया है, तो अब तक क्या था कि बीएसएफ का कार्य क्षेत्र था लेकिन हर राज्य में अलग अलग था। अब इसको यूनिफॉर्म किया गया है, मतलब सारे राज्यों के लिए। तो उसमें अपने गुजरात से, मतलब अब आप अगर ईस्ट से शुरू करते हैं, वेस्ट से, तो गुजरात से लेके पूरा ऊपर तक घूमता हुआ राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और ईस्टर्न स्टेट्स जो है 7 सिस्टर्स, वो उसका पूरा दायरा वहां तक फैला हुआ है। तो अब उसको एक लॉ के अंदर पूरा एक सा कर दिया गया है 50 किलोमीटर। और उसकी वजह यह है क्योंकि आप अगर बॉर्डर के हिसाब से देखो तो 15 किलोमीटर बहुत ही कम है। अब 50 किलो अपने यहाँ कम ज्यादा था, अभी तक 80 किलोमीटर था, वो कम हुआ। तो अब तक अगर गुजरात में 80 किलोमीटर होने की बावजूद कोई दिक्कत नहीं हुई, तो जरा जो ये विरोध कर रहे हैं पंजाब और पश्चिम बंगाल, तो मुझे उनसे जाके सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिर इसमें केंद्र सरकार को फायदा क्या है और राज्य सरकार को नुकसान क्या है।
क्योंकि जो सरहदें हैं वो तो वैसे भी सेना के अंतर्गत आती है। रही बात तब अधिकार की, तो चलो राजकीय जो हस्तक्षेप होता है या दबाव होता है वो पुलिस क्षेत्र में है, लेकिन अब तक नेमत है कि कभी सैन्य पर पॉलिटिकल दबाव कभी नहीं डाला गया। वो अपने हिसाब से देश के हित में बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए निर्णय लेती है सेना, तो फिर उसमें पॉलिटिकल एजेंडा कोई होना ही नहीं चाहिए। ये बात नहीं है कि कांग्रेस का विरोध हर जगह गलत होता है या सरकार का हर निर्णय सही होता है, लेकिन अगर हम जो अभी इस फैसले की बात कर रहे हैं, तो अभी ये जो दो राज्य विरोध कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजकीय मुद्दा लग रहा है। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूंगी, क्योंकि अब जैसे सिर्फ बहुत सारे स्टेट्स तो कवर हुए हैं, हमने देखा कहीं से कोई विरोध नहीं आया। वो जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो वो तो लगभग आप सोचो कि अब तक तो लगभग पूरे ही आते थे बीएसएफ के अंडर में। जो ईस्टर्न है स्टेट्स, जो 7 सिस्टर्स हैं, वो अब उनका दायरा कम हो गया है, लेकिन जो कम था पंजाब और बंगाल का, तो वहां सबसे ज्यादा फायदा उठा गया घुसपैठ के लिए, ड्रग तस्करी के लिए और ये शस्त्रों की हेरा फेरी के लिए। क्योंकि ये 15 किलोमीटर तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वहां तक तो उज्जड़ होता है। जो आखिरी के गांव होते हैं वो थोड़ी दूर बसे हुए होते हैं और वहीं से लोकल सपोर्ट मिलता है, तो इसीलिए इसका दायरा बढ़ाना जरूरी था। अब यहाँ दिक्कत ये हुई है कि यहाँ पे जैसे पंजाब की बात करें, तो वहाँ अभी से नहीं काफी वर्षों से ड्रग्स की हेराफेरी हो रही है, और एक समय तो अभी ये भी आया था कि पूरा वहाँ का यूथ ड्रग में डूब चुका है और चुका था, अब थोड़े थोड़े उबर रहे हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं वहाँ के पॉलिटिकल नेताओं से जुड़े हुए थे। अब जब ये बीएसएफ का दायरा बढ़ गया तो उनके लिए ये मुश्किल हो गया है, बस ये पेट में वहीं पे उनको दुख रहा है। और यही बात बंगाल की है, क्योंकि वहां पे उनकी जो वोट बैंक है, वो जो इलीगल बांग्लादेशी घुसाए जाते हैं वो है, तो वहां पे अगर धौंस पड़ी और वहां से काफी कुछ अभी शस्त्रों की हेराफेरी भी हुई है, तो ये जो सारा, और वहां पे जो ये पॉलिटिकल होते हैं उनको इस बात से पैसा भी मिलता है, वोट बैंक भी मिलती है, तो वो बस यही उनकी विरोध की वजह है। और ये सच में बहुत दुखद बात है कि जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तो कम से कम सेना को विवाद में नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि सेना इन सबसे ऊपर रह के काम करती है। अगर आप पुलिस का कार्यक्षेत्र बढ़ाते हो तो उसका गलत उपयोग होने का काफी कुछ अंदेशा रहता है, लेकिन सेना के लिए हम ये नहीं कह सकते। अब देखिए, अभी जो ये तकनीकी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, जो आतंकवादी है तो वो टेक्निकली इतने एडवांस है, तो फिर उनको, उनके लिए, अब सेना के लिए मुश्किल होता है अगर हम उनको दायरे में बांध के काम करने के लिए कहते हैं, तो उनका दायरा, उनका अधिकार क्षेत्र हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो इनसे एफिशिएंटली निपट सके। तकनीकी दृष्टि से उससे तो हमें उनको एडजस्ट मतलब एडवांस करना ही है, लेकिन उनका अधिक, क्योंकि अभी देखिए ये जो निर्णय लिया गया वो उन्हें इनपुट मिले होंगे, क्योंकि कश्मीर में अभी जहां से घुसपैठ हुई तो वो लोग 15 किलोमीटर आज पार करना रातों रात कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो सिर्फ 4 घंटे में कोई भी पार कर सकता है। 15 किलो, एक बार आप 15 किलोमीटर अंदर आ गए, फिर आप सेना के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गए, तो ये बात आतंकवादियों के लिए बहुत इजी थी। अब अगर 50 किलोमीटर हो गया है तो वो अब पूरी शक्यता होती है कि वो पकड़े जाएं। तो बस अब जैसे कश्मीर में है वो महबूबा मुफ्ती है, तो उसको भी यही है, अभी तक उसने कोई स्टेटमेंट दिया, लेकिन आएगा तो सही देर सवेर, मैं ये मानती हूँ। लेकिन अब इन्हीं की जो ये दुकानें बंद होने वाली हैं, इसीलिए ये सारा हो हल्ला किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये जो निर्णय है वो पूरे देश को फायदे में, उसकी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। क्योंकि देखिए, बाहर का कोई हमें डायरेक्ट मदद करने आने वाला नहीं है, तो जो है वो हमें अपने बलबूते पे करना है, और उसके लिए ये बढ़ाया गया एक बहुत अच्छा कदम है। जलपत जी बिल्कुल। उत्पल जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी है कि ये वाला जो निर्णय लिया गया है, इससे सेंट्रल फोर्सेस की बात करें तो उनको भी एक मजबूती मिलेगी। Jalpa ji, I want to make 2-3 things clear. My honored panelists, they have brought out certain things. I totally agree with them, but just minor few points from my side. Please consider that. जी,
After all, we are a democratic nation, and a democratic nation always rules, by the structure of federalism. And therefore, whatever we may say, but we have to be at times, not get carried away by, certain political ideology. And therefore, in a democratic structure, the police, the paramilitary forces, and the armed forces, they function under a very strong civilian military or civilian, no doubt on that. And therefore, border security force, but it is paramilitary force. And border security force on an international boundary only functions as long as the international boundary, the war does not take place. When a war takes place, the international boundary, the BSF gets withdrawn and the armed forces get deployed. LAC and the LOC, these are the two different, set of, rules for all that, for both these sectors. LOC is so heavy, whether it is active, whether it is hot or is not hot, but it's still, it requires the deployment of the armed forces, even during peacetime. In India-Pakistan or India-China scenario, LOC and LAC, de facto, it has become very hot all the time. And ceasefire violations are also taking place. Therefore, it is virtually day and night we are facing proxy war on the LOC. LAC of late, China is also becoming, it's not behaving in a way the major nation should behave. And therefore, LAC is also, getting hot. So therefore, there is no BSF involved there. BSF is getting involved only in places where, the defense in depth is not an issue. Because, even in Jammu and Kashmir, because of the internal security situation, the day and night, the armed forces get involved, which is, roughly, if you comes to Sena. But the BSF is controlled by Ministry of Home, not by Ministry of Defense. And it is paramilitary force. Therefore, the states have a point. We have to accept that fact. If we have to do an honest discussion, that in federal structure, the law and order is a state problem. And therefore, they have and therefore they are crying hoax. That look, the police, which has got a authority to carry out certain seize and the kind of search and then arrest, those powers have been taken away by this from the state. Therefore, it would not be still incorrect if via media is exercised and a state's and central forces coordination mechanism must come into play. If the 15 kilometer has not worked out till now because of technological advancement in the drone technology, in the new methods adopted by the terrorists, smugglers, jihadists and all that, and if it is not working out, now we have extended to 50 kilometers. If tomorrow the situation demands, now that 50 kilometers can also encompass the entire state. In Jammu Kashmir, it happened that way, and therefore certain amount of additional powers had to be given to armed forces under the name of the Armed Forces Special Power Act. And in J&K, people have objected to that. And one of the point in the local, kind of a, the discourse that is taking place is that the additional powers given to the armed forces should go. The central government does not agree to that. The central government's view is that because of the local condition, the Armed Forces Special Power Act will continue to be there. In Northeast also, because of certain, the special situation and which was not, good for the nation, the Armed Forces Special Power Act also was continuing in the northeastern sector also. But now northeastern sector is certain amount of terrorism, is now coming under control, or it is under control. So therefore, we have to, we have to view this, from that angle. Political issue, I do not want to get into that because it's not my domain. But I would still say that if there is a difference of opinion or difference of perception between the state and the central government, now that the rule which has been brought in, you cannot wish away whatever the thinking is there in a sensitive, border states like, Punjab, West Bengal, Tripura, Mizoram, Northeast, 7, states which are there. We have to take that into consideration. We can always have a dialogue,
and we can always try and mend ways in case, like I said in my introductory remark, that if fishes are found, we should not say that the politics is taking place. Politics will take place because political parties are meant for that. But I mean, we have to in a mature way or in a balanced manner, we have to take care of the situation of the objections which are raised by the border states, because these are not normal states. These are very, very sensitive states. Punjab, West Bengal, Rajasthan, Gujarat, and we have to take their if there are certain views, we have to take them into consideration. Because ultimately, in a democratic setup, you can't say that we are going to rule by paramilitary forces and military forces. Then we are not a democratic nation. And I mean, let's face the fact. After all, what are we trying to project to the world? And we are giving certain kind of a real material to the rogue nations like Pakistan, Afghanistan, and even to a large extent to the China. They will say that the government rule is not prevailing in the border states of India, because the border security force is calling shots over there, up to 50 kilometers in the entire districts. We have to even it out, and we have to balance it out. While the national security demands that kind of additional measures and additional powers to be given to certain forces like BSF, CRPF, and as the case may be, or ITBP, as and where the situations are required. But it can't be a blanket sanction in a democratic country or a democratic setup. It has to be issue based. It has to be time based, and it must be revised after a certain period of time. And maybe if required, we have to take the states also and states' consideration also into account. And that is how a mature democracy works. Let's face the fact. जी जी बिल्कुल. Because after all, border security force, like I told you, Jalpa, is not Sena. It is paramilitary force. And paramilitary forces and the forces which are controlled by the Ministry of Home that cannot be having same kind of power as in a democratic country, which will be given to law and order enforcement agencies. Because even if within 24 hours, whatever actions you have taken, BSF is accountable to be and take those culprits either to the police or to the to the judicial officers or to the court. They cannot have the ultimate authority. I'm carrying out without warrant, arresting a person in a democratic country is not a small power. It is generally not given. Such kind of powers are not even given to the armed forces unless they are beefed up by the Armed Forces Special Power Act. How can you, in a democratic country, you can arrest a person without a warrant? It's not advisable. But the kind of situation that the country is facing, momentarily it is required. For a certain period it is required. And we have to arm the BSF with that kind of power, which is under BSF. But tomorrow it can be misused. And if it is misused, then what? There has to be certain mechanism by which, if it's misused, the right kind of people, they bring them to the books. After all, we are not a police state. जी जी बिल्कुल. शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी. यहाँ पर जैसे उत्पल जी बात कर रहे हैं कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, लोकशाही वाला देश है. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टेट के जो मतलब रिकमेंडेशन है वो भी केंद्र सरकार को सुनने चाहिए. मैं उत्पल जी की बात सुन रहा था. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये जो मुद्दा है उसके बारे में कहा है. मैं उसका भी स्वागत करता हूँ. और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक जो हमारी डेमोक्रेटिक जो हमारा देश है, तो लोकशाही में जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनको जो अधिकार है वो अधिकारी की, तो उसका विरोध किसने किया? मैं जलपा जी, इसमें मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहता, मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, मगर इसका विरोध किसने किया? जो पश्चिम बंगाल है उसके तृणमूल कांग्रेस के मंत्री जो हैं वो फरहाद हकीम, उन्होंने विरोध किया. और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने विरोध किया. और
पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी, इन्होंने विरोध किया। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दायरा बढ़ा, ये दायरा बढ़ाने वाली बात जो अब तो ये मुद्दा हो गया है, इसीलिए कुछ ना कुछ नेगेटिव मुद्दा चाहिए, मगर दायरा बढ़ने से सीमा पार से होने वाले जो अपराध, उनमें कमी आएगी और अपराध पर रोक भी लगेगी। ये रोक लगाने में मदद रूप होगा और हेल्पफुल भी होगा। पश्चिम बंगाल के तृणमूल सरकार के बीएसएफ को 50 किलोमीटर के दायरे में अंतरिक्ष अधिकार दिए जाने पर जो ये आपत्ति जताई है, जिन्होंने भी, अधीर रंजन चौधरी हो, फरहाद हकीम हो या चरणजीत चन्नी हो, मगर उसको ये सोचना चाहिए कि बीएसएफ जो काम करना चाहता है कि उसको जो गति चाहिए जो 15 किलोमीटर में नहीं मिल सकती। अभी मैं पहले स्लॉट में भी बोला कि ड्रोन का जमाना आ गया है, सैटेलाइट का जमाना आ गया है, अब डिजिटलाइजेशन पर दुनिया चल रही है, डिजिटलाइजेशन में चल रहा है, तो इसके साथ चलना पड़ेगा ना। तो हमें जो हमसे कुछ भूल हो गई और घुसपैठ आ गई, तो ये जो कोई आतंकवादी आ गए और टेररिस्ट हमारे इंडिया पर कुछ घटना घट गई, तो क्या बोलेंगे ये विरोध पक्ष वाले? मालूम है, ये जो विरोध करने वाले बोलेंगे कि ये सरकार ख्याल नहीं रखती, ये पे अच्छा काम नहीं होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजबूत करो, उसको अधिकार दो, उसको फ्रीली काम करने दो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्म एक्ट जो है, आर्म फोर्स है, उसको फ्रीडम दे दो, ऐसी बात करेंगे। क्योंकि आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दी है। आतंकवादी जो JNK से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं या अफगानिस्तान, अब तो पावरफुल हो गया है, तालिबान तो हमें पता ही है, वहां इंडस्ट्रीज लगी है आतंकवादियों को पैदा करने की, हम सब जानते ही है। मगर उसके साथ और उसका सामना करने के लिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दायरा बढ़ाया है, उसको फ्री हैंड देने की शुरुआत की है। तो नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार का, गवर्नमेंट का स्वागत करना चाहिए कि ये अच्छी बात की है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाली बात है, वो बॉर्डर की बात है। बॉर्डर में 15 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर हो, वहाँ फॉरेस्ट का ही लैंड ज्यादातर होता है, तो फॉरेस्ट के लैंड में ये कार्यवाही अच्छी तरह बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है। तो उसको ज्यादा पावर देने का पंजाब और बांग्लादेश क्यों विरोध कर रहा है? और मुझे ये भी कहना है कि ममता दीदी, आप तो बहुत देशभक्ति की बात करते हो, तो देशभक्ति का ही ये निर्णय है। सभी निर्णय, सभी जो कायदे कानून नरेंद्र भाई मोदी लाते हैं, वो सभी का विरोध करना, बस उठ के अपना आया कि नरेंद्र भाई मोदी ये करेंगे तो उसका सुबह उठ के सिर्फ विरोध ही करना, ऐसी बात नहीं चलती। अभी मेरे बड़ी बुजुर्ग मित्र उत्पल जी बात करते हैं, बहुत सजग और जाने रक्षा विशेषज्ञ है, और मैंने उसको सुना। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये मेरे जो ज्योति जी है वो भी अच्छी बात बोली, और बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी इसका स्वागत है। जल्पा जी, आपकी चैनल के माध्यम देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है वो भी उसका स्वागत करता है, और जो ये होम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है, होम वो जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी स्वागत किया है। और ये जो गवर्नर कोई निर्णय होने में कुछ कमियां रहती है, तो कमियां क्या है वो कहना चाहिए कि ये कमी है, ये कमी है। देख लो कि किसान के जो 3 कानून थे, किसान के, वो किसान के 3 कानून में कुछ कमी आ रही थी, तो 12 बार बैठकें की हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने, और किसानों के साथ बैठकें की। जैसे राकेश टिकैत की 12 बार बैठे, फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ। यही बात है जो ममता जी है और चरणदास चन्नी जी है, चौधरी जी है, या तो कोई भी है, तृणमूल कांग्रेस के जो मंत्री है, वो है जो फरहाद हकीम है, ये जो लोग विरोध करते हैं, उसका मतलब ये है कि वो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं भूल से समर्थन कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये भूल से भी आतंकवादी का समर्थन नहीं करना चाहिए, मगर ये
कहीं ना कहीं मीडिया में छाए रहने के लिए, बयानबाजी करने के लिए ये करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मुद्दे कहीं है, मुद्दे का विरोध होना चाहिए, मगर किस मुद्दे पर, किस बात पर विरोध करना चाहिए। अगर आप सैनिक जो हमारे फौजी हैं, वो फौजी का विरोध करोगे, बीएसएफ का विरोध करने लगोगे, हमारे सैन्य बल का विरोध करोगे, हमारी एयर स्ट्राइक का विरोध करोगे, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने लगोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जो आने वाले भविष्य में ये अच्छी बात का संकेत भी नहीं है। विरोध करने का भी एक तरीका होना चाहिए, विरोध करने का भी एक मुद्दा होना चाहिए। बीएसएफ के बारे में कहीं उसका पावर बढ़ाया, कल जाके ये बोलेंगे कि बीएसएफ को ज्यादा बिजली मिल रही है, उसकी बिजली काट दो। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्यादा पैसा मिल रहा है, उसको ज्यादा जो पैसा मिल रहा है सरकार से वो बंद कर दो, उसको अच्छा खाना मिल रहा है वो बंद कर दो। ये नहीं चलेगी। और जो बीएसएफ से हमें कुछ सुरक्षा चाहिए तो उसके हाथ में बेड़िया नहीं डालनी चाहिए, उसके हाथ में बेड़िया डाल दो और उसको बोलो कि दौड़ो, पाँव में बेड़िया डाल दो और बीएसएफ को बोलो कि दौड़ो। ऐसे दौड़ा नहीं जाएगा, उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। और ये नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली ये सरकार है, उन्होंने मन बना लिया है कि आतंकवादी जो है वो भारत देश में जिंदा आएगा मगर जिंदा जाएगा नहीं। मगर अब तो मुझे ये लग रहा है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दायरा बढ़ाया है तो जिंदा आ भी नहीं सकेगा आतंकवादी। और आतंकवादी जो टेररिस्ट है उसका कोई धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं, मगर पश्चिम बंगाल में जैसे विरोध हो रहा है उसमें मुझे कहीं ना कहीं राजनीति की बदबू आ रही है, राजनीति वहां हो रही है। और नरेंद्र भाई मोदी का कोई भी निर्णय हो उसका विरोध करना, बस कोई भी अच्छा निर्णय हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का निर्णय हो, सैन्य का निर्णय हो या जहाज का निर्णय हो या दरियाई सीमाएं है उसका निर्णय हो, कोई भी एक्ट लाए, कोई भी नियम लाए, बस सुबह उठकर विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। आगे जाके मैं तो ये भविष्य भी बोल देना चाहता हूँ, ये भविष्य में ये लोग सैन्य को जो पैसा मिल रहा है उसका भी विरोध करेंगे और बोलेंगे कि बेड़िया डाल दो सैनिकों को, बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और उसको तोड़ाओ। ऐसे नहीं चलेगा। विरोध करने का भी एक तरीका होना चाहिए। सभी बातों का विरोध करना अच्छी बात नहीं है और अच्छी बात का संकेत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार का जो काम है वो भारत के लोग तो तारीफ कर ही रहे हैं मगर दूसरे लोग भी तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका ने भी भारत की तारीफ की है और भारत का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हमारी शान है। हम जो कश्मीर हो या बांग्लादेश हो या पंजाब हो या गुजरात की बॉर्डर हो, कहीं भी जाओ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, उसको हम सलाम करते हैं। और ये जो नया कानून आया है ये कानून नया नहीं है, 1968 से है ये मगर तब 15 किलोमीटर था, अब 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया है तो काम अच्छी तरह होगा। अभी वहाँ कोई गांव है तो गांव में जाने के लिए और प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए ये भी दायरा बढ़ाया है और फॉरेस्ट की लैंड है उसके लिए भी दायरा बढ़ाया है, मगर इसका विरोध करना नहीं चाहिए। सरकार ने अच्छा काम किया है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल विपक्ष को उसने जो बोला है, विरोध के जो सुर छेड़े हैं उसको वापस लेने पड़ेंगे और वो बोलेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी का जो विरोध हम करने लगे राजनीति से प्रेरित था और हम राजनीति में चले गए थे, हम माफी चाहते। जो विरोध कर रहे हैं वो बोलेंगे कि अब हम माफी चाहते हैं, हमने विरोध करने में अंधे होकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी विरोध कर डाला, उसको अफसोस होगा।
जी जी बिल्कुल। ज्योति जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी। ये पूरा मुद्दा इसी बात पे है कि जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तब उस पर कोई चर्चा नहीं होती। डायरेक्टली हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ट्वीट कर देते हैं या फिर उस पर कोई भी सोचे समझे बिना निवेदन जो है वो दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसकी इम्पैक्ट क्या रहेगी। जैसे अभी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका, कांग्रेस की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो उन्होंने गुजरात के ड्रग्स के साथ मतलब इसे वो कर दिया कि ड्रग्स पकड़े गए गुजरात में के अदानी पोर्ट में और अधिकार छीन गए पंजाब के। यानी कहीं ना कहीं अगर हम पंजाब की, जैसे कि आगे भी हमारी चर्चा हुई, अगर पंजाब की बात करें, उड़ता पंजाब जिसे कहा जाता था, और अगर वहां पर हमने देखा कि सत्ता परिवर्तन भी हुआ था। पहले वहां की जो लोकल पार्टी है वो थी, उसके बाद कांग्रेस आई थी, और वही शिरोमणि अकाली दल की अगर हम बात करें तो वहां से भी निवेदन आया कि ये इंटरनल इमरजेंसी आ गई। मतलब समझ में नहीं आ, मुद्दा ये है कि उन्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कहना क्या है, उनका मतलब टारगेट क्या है। मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए सिर्फ ये दो थे कि जिसमें बीएसएफ एरिया सबसे कम था, 15 किलोमीटर का। बाकी जितने भी स्टेट्स थे उनका 50 या उससे ज्यादा था। राजस्थान का 50 था, अपना 80, ऐसे ही जो ईस्टर्न स्टेट्स है उन सबका किलोमीटर लगभग कवर हो जाता था। तो बस ये दिक्कत यहाँ थी कि ये जो इनका 15 किलोमीटर का दायरा बढ़ गया। देखिए क्या है कि वो अगर बीएस अंडर में आया है तो वहां पुलिस खत्म हो गया, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है सत्ता में जिस राज्य में, तो हम सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट उनके इशारों पर नाचता है। अब ये कड़वी है सही, लेकिन हकीकत है। तो जब वो पुलिस का वहां से शेप खत्म हो जाता है, लगता है कि उनका क्षेत्र हो गया। अब वही बात है, जैसे उत्पल जी ने कहा, उन्होंने समझा मिलिट्री और मिलिट्री का टेक्निकली डिफरेंस समझाया, तो मैं उससे बखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं भी एक मेरी हूँ, इसलिए ये सब हूँ। मेरा कहने का ये था कि बीएसएफ भी उसी डिसिप्लिन में काम करती है और ट्रेंड होती है कि जिस डिसिप्लिन में आर्मी तैयार होती है। तो बीएसएफ पॉलिटिक्स में काम नहीं करती। इस बात से तो सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि अपनी सेना और जो भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे हो, वो कभी भी पॉलिटिकल दबाव में काम नहीं करती है। इसलिए ये स्टेटमेंट में बंगाल के नेताओं, तो ठीक है, लोकशाही है, उनको विरोध करने का हक है, लेकिन कोई वाजिब तर्क तो हो। और यही बात है कि विरोध के स्टेटमेंट्स में मुझे कहीं कोई तर्क नजर नहीं कि जो धरातल, और इसीलिए फिर विरोध बेमौलिक रहा है, क्योंकि ये है कि मुझे तो उसके पीछे एजेंडा कि उनका पुलिस का खत्म हुआ और इनडायरेक्टली उनका हो गया, और अब तक उनके बहुत सारे हित जुड़े हुए थे। ये बॉर्डर की आसपास जो आवाजाही होती उससे, वो ड्रग की है चाहे हो, जैसे मैंने कहा कि वो वहां से वो पैसे भी मतलब करते हैं, क्योंकि लीगल धंधा पॉलिटिक पावर करना भी सकता है, चाहे वो कोई भी है, वो गुजरात हो चाहे पंजाब हो चाहे बंगाल हो, जहां भी इलीगलिटी है वहां कोई पॉलिटिकल नेता जरूर शामिल होता है, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा जो कहना था तो वो डिसिप्लिन की वजह से था कि बीएसएफ अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको जो पावर दिए गए हैं उसका मिसयूज होगा। और उत्पल जी की इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि कभी हुआ तो उस वक्त जाहिर है कि लोगों को होगा, जैसे पहले भी हुआ था, मतलब लगा था लोगों को कि, और लोग कह रही हूं मैं, सामान्य लोग, आम लोग, नेता या पक्ष के कार्यकर्ता, क्योंकि उनका तो काम ही यही होता है हल्ला मचाना, लेकिन आम जनता अगर परेशान होती है, अगर उस विरोध का सुर उठता है, तो लगता है कि फिर जरूर कोई भी सरकार अपने लोगों को नाराज करना तो नहीं चाहेगी और उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल की जो परिस्थिति है देश की, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे
चारों दुश्मन देश है, मतलब हमारा जिनसे दोस्ताना था वो भी अब दुश्मनी में बदल चुका है। हम नेपाल को देख सकते हैं या मालदीव्स को ले सकते हैं या बर्मा को ले सकते हैं, हर जगह अब पॉलिटिकल नजरिया बदल चुका है। जो हमें भाई के संते थे वो अब हमें मतलब हमें अब विरोध की सुर में बोलते हैं वो लोग, तो उससे भी बहुत कुछ समझने वाली बात है। तो हमें जरूरत ही थी कि इस तरह हमारी बॉर्डर खुद की जाए। तो कभी क्या होता है कि ना, एक जुआ तो खेलना पड़ता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई गलत इफेक्ट भी दिखेगा, लेकिन एक निर्णय तो लेना पड़ता है। क्या गलत होगा ये सोच सोच के हम निर्णय नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी फिर हो जाती है। इसलिए फिर अभी जो निर्णय लिया गया है वो मुझे तो लगता है कि अभी हाल फिलहाल की जो परिस्थिति है और जो आसपास के देशों का रवैया है उसको रखते हुए लिया गया है। इसलिए अभी तो हमें इसका स्वागत ही करना चाहिए। अगर मुझे विरोध पक्ष के नेताओं के स्टेटमेंट में कुछ भी ठोस तर्क लगता तो मैं उनका भी जरूर यहाँ पे उल्लेख करती, लेकिन अभी तक मुझे कोई नजर नहीं आया। जी जी बिल्कुल। जी उत्पल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी 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 उत्पल। Just 1 minute. See, by no means, like I say that, politicians and politics is a totally different, cup of tea. And I don't want to get into it, who has given what statement. They have their own compulsion. Neither I'm going to defend, nor I'm going to say that, this should not have been made. Because there we have political analysts and we have also the other, the panelists. It is their domain. They are expert in that. And I will definitely go by their views. What I'm trying to say is that whatever issue that we are discussing is the law of the land. We can keep discussing, but we have to abide by that law because it's a law of the land. As of now, it has been passed by both the houses, and therefore, we have no other option. Now, whatever difference of opinion that takes place at a local level, field level, at political level, or whatever it is, that can be resolved if required. Otherwise, government will say, look, we have, made the law, and therefore you please abide by it. And make, I'm not for a moment I'm saying that the law is not required. Law, I'm again and again saying that considering the current situation that India is passing through, it is very much the need of the hour. There is no doubt. There can be no compromise with the national security and the dynamics or the kind of the forces that they are ready to operate against the interests of the nation. No, you cannot. उसमें कोई compromise नहीं हो सकता. And I am also saying that Atangwadi, which we can call it a terrorist or a jihadist or a mercenaries, if they decide to play by the bullet, or if they decide to play by the AK-46, they have to be dealt accordingly, and they will be dealt. There is no doubt, because like the famous saying says, if you decide to live by the sword, you have to die by the sword. And armed forces and intelligence agencies will make sure. There is no doubt in that once you decide to lift the AK-46 against the authority of the nation or against the authority of the state, you have to face the bullet. You will be dealt with accordingly. There is no doubt in that. But at the same time, let's not get carried away. And if there is a certain kind of requirement on which a discussion has to take place, I'm sure there are authorities will take care of that situation. And let's leave it at that. So nobody should misunderstand me by saying that I am against the law. No. In the current situation with the Afghan problem, with the Taliban government, coming into place, the way they are going to play their drug card and narcotics card, the way, the terrorists are going to take the orders from ISI, Taliban and, the ISIS, we have to be prepared. And we can take care of the external security situation provided we are very, very strong in the internal security situation. Therefore, both have to go hand in hand, and this law at this moment is required. Nobody should unnecessarily raise objection for the sake of raising objection. I fully support that. But at the same time, we have to make sure, and I'm saying in a larger perspective, please for a moment, keep the political ideology aside, but think that we are a democratic nation.
And when we hand over such kind of powers to whether it's border security force or armed forces and all that, if it's required, must be handed over. But it will have its own repercussion. It will have its own discussion. It will have its own objection. And therefore, there has to be a mechanism by which we can tackle that situation. Armed Forces, Special Power Act, government came under tremendous amount of pressure in last 5 years. But government did not withdraw it. They said nothing doing. In Jammu and Kashmir, that is required. And armed forces also put their foot down, saying that how do you want us to function in J&K and the kind of situation in which the armed forces are operating? The Special Powers Act is required. And it's not been removed. It has been not neutralized. Similarly, this, the 50 kilometers जो दायरा बढ़ाया गया हुआ है, it is required at this moment of time. There is no doubt in anybody's mind. And therefore, again and again, I'm saying that why it is required, the political opposition, just for the sake of opposition, should not be done. And I will leave it at that. जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि सुरक्षा पर सवाल क्यों। हमने देखा है कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तब उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली प्रहार हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि आखिरकार पंजाब और बंगाल की बात करें, हम पंजाब कांग्रेस नहीं, अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल कांग्रेस की बात कर लेते हैं या फिर दूसरे कुछ दल की हम बात कर लेते हैं, ये विरोध क्यों है? क्या इन दलों ने नहीं देखा कि अभी कुछ दिनों से क्या माहौल चल रहा है? क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता कि ड्रोन से जो हथियार की हेराफेरी चल रही है वो किस हद तक पहुंच चुकी है? प्रश्न ये उठता है कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी सोचे समझे बिना उसका विरोध क्यों? वैसे तो सभी दलों को ये कहना चाहूंगी और स्टेट जो है उनको भी कहना चाहूंगी कि हर एक दल जो है पॉलिटिकल पार्टी जिसका कहीं ना कहीं हर स्टेट में दबदबा रहता है, वो सारे स्टेट मिलके ही देश बनता है। और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सब जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आए तब सब एकजुट हो जाए। हाँ, हर स्टेट वाइज अगर हम बात करें, जैसे कि पहले गुजरात की बात करें तो 80 किलोमीटर्स का था, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर पहले 50 किलोमीटर का था, 50। अगर हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं पंजाब की या पश्चिम बंगाल की तो 15 किलोमीटर था। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है उसको एनालिसिस करके ये फैसला लिया गया कि सबको इक्वल मतलब किया जाए, और ज़रूरत ये भी है कि पंजाब और बंगाल को अब और ज़्यादा सिक्योर किया जाए। तो अभी तो ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा चुका है। आशा रखते हैं कि कोई भी इस पर विवाद ना हो और समझे कि नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बढ़कर है, नहीं कि हमारे कंट्रोल में या फिर हमारी जो पुलिस है उसके कंट्रोल में क्या रहता है। ज़रूरत है सोचने की कि देश सुरक्षित रहे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।